Paper 5, Planning, November 2016, Variant 52. Titrations using ethylene diamine tetraacetic acid, short form EDTA, can be used to determine the concentration of metal ions in solutions such as Zn2 positive aqueous. A solution of EDTA is usually prepared from hydrated disodium salt Na2H2Y.2H2O. The anion of EDTA is H2Y2 negative, where Y represents the organic part of the ion. The equation for the reaction between Zn2 positive and EDTA is shown. The indicator for the reaction is solochrome black, which changes color at the end point from purple to blue. The indicator only works at pH 10, so a buffer solution is added to the metal ion solution to maintain the pH. Explain why the pH would change during the titration if the buffer were not present. तो अगर आप इक्वेशन में देखो तो इक्वेशन में H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट साइड पे आपको नजर आएगा H पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर बफर ना हो तो इस H पॉजिटिव की वजह से जो है पीएच जो है ड्रॉप करेगा, इट विल गो बिलो 10 एंड द इंडिकेटर वुड नॉट फंक्शन। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? इफ द बफर इज नॉट प्रेजेंट, if the buffer is not present, the pH would become more acidic, yeah, it would drop, ठीक है ना? As H positive ions are produced during the reaction, and their concentration increases in solution, ठीक है ना? H पॉजिटिव जब प्रोड्यूस होंगे वो जमा हो जाएंगे सोल्यूशन में, जिसकी वजह से उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट द पीएच वुड ड्रॉप। अगर बफर नहीं होगा तो आपका सोलोक्रोम ब्लैक जो है इट वुड स्टॉप वर्किंग। You are to plan a titration experiment to determine the concentration of zinc ions in a solution of zinc sulfate of concentration of approximately 0.1 mole per dm cube. You are provided with the following materials: 20 grams of hydrated disodium EDTA MR372.2, aqueous zinc sulfate of approximate concentration 0.1 mole per dm cube, buffer solution pH 10, solochrome black indicator solution. Name three pieces of volumetric apparatus you would use with their capacities in cm cube. We would need a 250 cm cube volumetric flask, क्योंकि हमें सॉल्यूशन ऑफ ईडीटीए बनाना है और हमें ईडीटीए जो है सॉलिड फॉर्म में दिया गया है। अच्छा, दूसरा, टाइट्रेशन के लिए पिपेट और ब्यूरेट की जरूरत होती है। वी वुड नीड अ 25 सेंटीमीटर क्यूब पाइपेट एंड अ 50 सेंटीमीटर क्यूब ब्यूरेट. So these are the three pieces of volumetric apparatus and the capacities in which they are required during the titration. Calculate the mass of hydrated disodium EDTA that would be required for the preparation of a standard solution of concentration 0.1 mole per dm cube using the apparatus you have specified in 1. तो अब हमारे पास जो है concentration उन्होंने बताई कि हमें बनानी है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, तो 0.1 मोल्स इन 1000, और हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो लिया है वो 250 सीएम क्यूब के लिए, तो हाउ मेनी इन 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 1000 इंटू 0.1, तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.025 मोल्स। अब मोल्स हैं और एम आर उन्होंने बताया हुआ है 372.2, तो मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स इंटू एम आर। मोल्स हैं 0.025 इंटू एम आर 372.2,
इससे आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा 9.31 grams. Describe how you would prepare this standard solution for use in your titration. Okay, तो आप इसको in detail लिखते हैं. Add 9.31 grams of disodium EDTA in a 50 cm cube beaker and add some distilled water. थोड़ा सा डालना है ताकि उसको डिजोल्व करें, ठीक है ना. Stir and transfer to the volumetric flask. Wash beaker with distilled water. And transfer washings into the volumetric flask. इससे क्या होगा कि जो भी लगा हुआ रह जाएगा आपका डाइसोडियम इमिडिटी है वो भी जो है पानी के साथ चले जाएगा, तो बीकर में से सारे का सारा ट्रांसफर हो जाएगा इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. अब क्या करना है, मेक अप द वॉल्यूम अप टू द 250 cm क्यूब मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मार्क बना हुआ होगा. मेक अप द वॉल्यूम up to the 250 cm cube mark with distilled water. ठीक है, जब ये हो गया इसके बाद स्टॉपर लगा के सेवरल टाइम्स इन्वर्ट करना है ताकि यूनिफॉर्म डाइल्यूशन मिल जाए. तो इसको लिखेंगे स्टॉपर एंड इन्वर्ट several times to achieve uniform dilution. तो ये हमने इन डिटेल डिस्क्राइब कर दिया कि हाउ यू वुड प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, a standard solution of disodium EDTA to be used in our titration. After you have performed a rough titration, how would you ensure that your next titration is accurate? तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग के रफ टाइट्रेशन की जो वॉल्यूम है उसके करीब करीब जब आ जाएगी हमारी वॉल्यूम, उसके बाद हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे सोल्यूशन, ठीक है ना. और एक ड्रॉप डालने से जो कलर चेंज करेगा उस पर रोक देंगे, इससे हमारी जो टाइट्रेशन होगी वो एक्यूरेट हो जाएगी. इसको लिखते हैं when nearing the end point. एंड पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, ठीक है ना. तो व्हेन नियरिंग द एंड पॉइंट ऐड सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट. ड्रॉप वाइज so that addition can be stopped when a single drop changes the color of the indicator. तो इससे टाइट्रेशन एक्यूरेट हो जाएगी. हाउ वुड यू एंश्योर दैट योर टाइट्रेशन रिजल्ट इज रिलायबल? इसको रिपीट करके हमें या तो दो वैल्यू सेम है जिसको कॉन्कॉर्डेंट वैल्यूज बोलते हैं, या दो वैल्यूज के बीच में, दो टाइटर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ 0.1 cm की वो, तो उसको हम रिलायबल रिजल्ट्स मानेंगे. तो इसके लिए लिखेंगे रिपीट द टाइट्रेशंस
to obtain concordant titers. इसका मतलब होता है to obtain titers with the exact same values. ठीक है, to obtain concordant titers or titers with a difference of 0.10 cm cube between them, क्योंकि ये अलाउड डिफरेंस है। तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें आपका जो रिजल्ट है वो रिलायबल माना जा सकता है। The term hard water is used to describe water containing the dissolved metal ions calcium and magnesium. Both of these metal ions react with EDTA anion H2 negative. अच्छा, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों रिएक्ट करते हैं तो दोनों जो हैं वो सॉल्ट्स बना देते हैं और 4 moles of H positive ions भी प्रोड्यूस होते हैं। In an experiment to determine the concentration of each of these metal ions, two separate titrations with EDTA need to be performed. For titration 1, a 25 cm3 sample of hard water is titrated with 0.01 mole per dm3 EDTA solution using solochrome black solution as indicator. For titration 2, another 25 cm3 sample of the same hard water is first treated with excess 2 mole per dm3 NaOH, which will precipitate all of the magnesium ions as magnesium hydroxide. After this treatment, no magnesium ions remain in solution, leaving only dissolved calcium ions in solution. This solution is then titrated with 0.01 mole per dm3 EDTA solution using solochrome black solution as indicator. So basically आपका जो फर्स्ट टाइट्रेशन है उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों टाइट्रेट होंगे और सेकंड केस में सिर्फ कैल्शियम होगा। तो अगर हम टाइट्रेशन 1 की वैल्यू निकाल लें और टाइट्रेशन 2 की वैल्यू उसमें से माइनस कर लें तो हमें जो है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस भी मिल जाएंगे या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो दैट इज व्हाट दे मे आस्क अस टू डू। लेट्स सी आगे क्या पूछा है। The following information gives some of the hazards associated with chemicals used in the procedure. Sodium hydroxide जो है solutions equal to or more concentrated than 0.5 mole per dm cube are classified as corrosive. हाथ पे नहीं लगने चाहिए। Solochrome black. Solid solochrome black is classified as a health hazard and is irritating to eyes, respiratory system, and skin. All solutions are made up in ethanol and so are classified as flammable and health hazard. Identify one hazard that must be considered when planning the experiment and describe a precaution other than eye protection that should be taken to keep risks of the hazard to a minimum. ठीक है, अगर आप NaOH की बात करते हो तो इसमें जो हैजर्ड है वो आप लिखोगे NaOH is corrosive और उसके हिसाब से प्रिकॉशन हो जाएगा वेयर ग्लव्स। ठीक है, ये हो गया आपका अगर आपने NaOH को कंसिडर किया है। अगर आप सोलोक्रोम ब्लैक की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे सोलोक्रोम ब्लैक इरिटेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके हिसाब से प्रिकॉशन क्या हो जाएगा वेयर फेस मास्क। तो इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करते हो अपनी मर्जी से उसके हिसाब से उसका प्रिकॉशन आपने लिखना होगा। NaOH लिख रहे हो तो वेयर ग्लव्स, सोलोक्रोम ब्लैक लिख रहे हो तो वेयर फेस मास्क। Results obtained from this experiment are shown. Titer 1 की वैल्यू है 22.70 cm cube and Titer 2 की वैल्यू है 16.60 cm cube. Titer 1 जो है it is calcium and magnesium. Titer 2 is only calcium, not magnesium. Use the results of the titration to determine the concentration of calcium and magnesium ions in hard water. Okay, तो titration 1 से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं titration 1 टाइट्रेशन 1। ठीक है, अब इसमें क्या कैलकुलेशन करना है हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी 0.01 मोल पर डीएम क्यूब 0.01 मोल्स इन 1000
और टाइटर वैल्यू आई है 22.70। तो हाउ मेनी मोल्स इन 22.70 cm3? तो ये हो जाएगा 22.70 अपॉन 1000 इंटू 0.01, जिससे आंसर आता है हमारे पास 0.00, एक्चुअली 000, 0.00227 मोल्स। ये हमारे पास हो गया मोल्स ऑफ आपका ईडीटीए जो यूज हुआ था। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है दोनों मौजूद हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंड, ठीक है, उसको निकालना है। अब हमारे पास मोल्स आ गए ना, तो और हमने जो सोल्यूशन यूज़ किया था हार्ड वाटर का वो 25 cm³ था। तो मोल्स जो हैं 1:1 का रेशियो है। तो वो मोल्स जो आए हैं 0.000227 इन 25 cm³ ऑफ हार्ड वाटर। हाउ मेनी मोल्स वुड बी प्रेजेंट इन 1000 cm³ ऑफ हार्ड वाटर? तो इससे हमारा कैलकुलेशन बन जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.000227। इससे आंसर आ रहा है 0.00908 मोल पर DM³। ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंबाइंड इन हार्ड वाटर, ठीक है ना? ये हो गई हमारी टाइट्रेशन 1। अब बात करते हैं अपने टाइट्रेशन 2 की। टाइट्रेशन 2 में हमारे पास जो है वो ईडीटीए की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.01 मोल पर DM³ है। तो 0.01 मोल्स इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और टाइटर वैल्यू 16.6 है। तो हाउ मेनी मोल्स इन 16.60 सेंटीमीटर क्यूब? इसकी कैलकुलेशन हो गई 16.60 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.01। इसकी वैल्यू आ रही है 0.000166 मोल्स, ठीक है। अच्छा, अब जो मोलर रेशियो है वो 1:1 है, ठीक है। EDTA2 आपका इसमें कैल्शियम आयंस है। तो इसकी फर्दर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन निकालने के लिए। अब हमारे पास जो है वो है 0.000166 मोल्स इन 25 cm³ हमने लिया था वाटर, और उसमें से मैग्नीशियम हटा दिया था, ठीक है। तो हाउ मेनी मोल्स वुड बी प्रेजेंट इन 1000 कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए? तो इसके लिए होगा 1000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.000166। इसका आंसर आता है 0.00664 मोल पर DM³। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। और जो टाइटर 1 का एंड रिजल्ट था वो थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम आयंस। तो अब हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग टोटल कॉन्सेंट्रेशन 0.00908 में से माइनस कर देंगे 0.00664 को, और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.00244 मोल पर DM³, और ये हो गए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो हमारे जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज 6.64 इंटू 10⁻³ और जो मैग्नीशियम का आ रहा है वो आ रहा है 2.44 इंटू 10⁻³ That is how you calculate the concentration of calcium and magnesium ions in a sample of hard water by titrating it with a solution of disodium EDTA.